in each of the situation, and then we have to understand which force it is balancing. पहला तो सिंपल है वंशिका, what is the first आंसर इन फर्स्ट? पहले वाले का आंसर क्या है? mg. नॉर्मल रिएक्शन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ there is only one force, n is equal to mg. This is very simple. Mr. Ishan, second normal reaction. mg plus 20 newton, which is how much? 120 newton, right? Very good. mg भी नीचे लग रहा है, भी नीचे लग रहा है, सो दोनों को इस नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस किया. That's 10 into 10, 100 plus 20, 120 newton. Very nice. Okay. Heath, third one. mg cos 37. mg cos 37, normal reaction n, mg होता रहता है. Okay. Cos 37, sin 37. So in the third case, normal reaction is balancing mg cos 37. Cos 37 कितना है? Right. 37 को याद रखने के लिए 37 के सामने 3. This is 3. This will be 3, 3, 4, and 5. This magic triangle. With the help of this triangle, you can determine sin theta, cos 37, tan 37. Yes. n sin 37, sorry, mg sin 37 की वजह से नीचे एक्सीलरेट होगा and mg cos 37 ने सरफेस को प्रेस किया. Yes, number 4. आंसर बताओ, कहानी नहीं बताओ, कैलकुलेट करके और आंसर बताओ. व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर नॉर्मल रिएक्शन? नो, ये मैंने याद करने का तरीका बताया. अगर किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 3 हो, बेस 4 हो, हाइपोटेनस 5 हो जाता है. इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है. sin 37 is 3/5, cos 37 is 4/5, tan 37 is 3/4. That is the way to memorize sin 37. ब्लॉक का मास क्या है? गुड क्वेश्चन. ब्लॉक का मास है 20 kg. और कहाँ होगा? ब्लॉक पर ही है. हमारे पास तो है डीबीपी. वेयर? क्या अपोजिट? किसका अपोजिट? इसका अपोजिट. अपोजिट तो किसी के रेस्पेक्ट में होता है ना. Yes, resolve the force, draw the equation in y direction to calculate the normal reaction. कितना? Yes. Which will be how much? 180. Sin theta? बिल्कुल करेंगे यार. करो, मैं तो छोटा हूँ तुम्हारे लिए, सब मैं ही करूंगा क्या? It's for you. 220 newtons. ये ऐसे हवा में कैसे लिख रहे हो? Draw the forces. FBD in each case. खाली आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा. Resolve the forces. Resolve the forces. एक cos, एक sin और Sir, फिर 180 हमें Newton. 180 Newton. Yes, yes, absolutely 180 Newton. (20√2 cos 45, 20√2 sin 45. ये ऊपर की तरफ लग रहा है, प्लस एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, एंड दोस टू बैलेंसेस द वेट. सो n
प्लस इसको यहाँ से शो करो या फिर इधर, n plus 20 root 2 sin 45. Sin 45 is 1 by root 2. Root 2 gone. This will be equal to mg. M is 20. So पहले वाले में तो easy था. Now let's go to the second one. Second question is better. धीरे धीरे level up. हमारे पास DPP नहीं है. I will write the question. Second question में there are two blocks और दोनों के बीच का normal reaction निकालना है. There are two blocks in these diagrams. Calculate the normal reaction between the stationary blocks. It's given in the question. The blocks are stationary. ये थोड़ी सी time taking exercise है, but we are doing this because it is the ABCD of mechanics. अगर इसमें आपको सही से थोड़ी सी confidence आ गया, then you will be able to solve any type of question. To start with, HC Verma is also a decent book after this DPP. This DPP is very easy to very difficult. And question number second, find a normal reaction between the blocks. You have to always find in between the two contact surfaces. This is the first case, 1 kg, 2 kg. Second, there are two spheres. F is 20 Newton and there is 20 root 2, sorry, 10 root 2 Newton. The second case, or iska angle given hai, that it is at an angle of 45 degree. We have to find the normal reaction between the two blocks, उनके बीच वाले contact surface पे. Third का diagram थोड़ा टेढ़ा है, आप उसके diagram पे मत जाए, information पे जाए. इधर ये angle है 90, this is 90, here it is 30, और there is a force F applied from here, and the sphere of mass 1 kg is stuck in between. आयुष, देखने से नहीं होगा, करने से होगा. Yes. Again, there is a block and a small block. Force of 10 root 2 is applied at an angle of 45. Quick. Or in the third and fourth, the masses are not. In the second, the masses are not known. Second and fourth, the masses are not. Yes. So there might be some other way. नहीं, इसका लिखा हुआ, sorry, second में. In the second and fourth, the masses are not known. So you have to take other than mg to calculate it. आप diagram बनाइए. Yes, show the FBD. उसमें force कौन सा किधर, ऊपर या नीचे, दाएं बाएं. FBD की practice के लिए हमने एक क्लास रखी है, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं. In the CBSE class, already till rotation has been covered. करते हो क्लास एपी सर की कभी कभी रेगुलरली? ज्यादा फास्ट चल रहा है इसलिए कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ने को मिल रहा है यार एक ही पैसे में. डू इट ट्वाइस. 50-60% उधर आएगा, दोबारा इधर आएगा.
ओके डन। पहले का आंसर क्या है? एक मिनट, अभी ऑनलाइन लोगों का नंबर है। गोविंद, आर यू देयर? Yes, sir, गोविंद, I'm here, sir. yes, what is the normal action in the first case between the blocks? इस सरफेस का normal action कितना है? सर क्या है सर? क्या कहाँ हो? क्या सर? नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा हम, दो सरफेस के बीच में। सर एक सेकंड सर, मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रही है सर, मैं एक मिनट दरवाजा बंद करके आया। हाँ, चेंज योर पोजीशन। ओके, यस, कितना ये निशित? 100 न्यूटन। ऊपर वाले सरफेस पे जो लग रहा है वो क्यों? ऊपर वाले के वेट को बैलेंस करा होगा, नीचे के सरफेस पे निकालेंगे तो दोनों का वेट m1 plus m2 जी। So on the upper surface n is equal to m1g and m1 is 1, so 1 into 10, that's 10 Newton. 1 into 10, 10 Newton. Okay, what about the second one? दो ब्लॉक के बीच में यार, दो ही ब्लॉक है हर जगह पे। 30 न्यूटन्स। ओके, 30 न्यूटन्स। लेट्स चेक। सेकेंड वाले केस में एफबीडी बना के देखना है कि हमें कहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। फर्स्ट, इसका m1 नीचे की तरफ, इस सरफेस को प्रेस किया m1 ने, उसको अपोज करने के लिए n ऊपर, राइट। इसमें अगर सेकंड वाले का एफबीडी बनाओगे, नीचे वाले का ऑफ द ब्लॉक m2, इस पे नीचे से कुछ नॉर्मल एक्शन लग रही है, लेट्स से n डैश, नीचे से ऊपर लग रहा है n डैश। ऊपर वाले ब्लॉक को इसने प्रोवाइड किया था नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके ऊपर उतना ही रिएक्शन लगेगा नीचे की तरफ, प्लस इसका वेट लगेगा m2g। जस्ट फॉर द क्लियरिटी, अगर हम इसमें a का और b का अलग अलग एफबीडी बनाए, a इज द अपर ब्लॉक, b इज द लोअर ब्लॉक। a के एफबीडी में केवल दो फोर्सेस थे, नीचे के सरफेस से n और इसका खुद का वेट m1g। n किसने लगाया? नीचे वाले ने लगाया, इसलिए उसका रिएक्शन उसके ऊपर लगेगा। एक्शन रिएक्शन क्या है? एक्शन ऊपर की तरफ, सेकंड ब्लॉक का ऊपर नहीं आना चाहिए, बीच में, मतलब जो एनजी का है उसको ऊपर वाले में ऐड नहीं करना चाहिए, पीछे वाला का, क्योंकि ऊपर जो रिएक्शन लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, mg1 हुआ और ऊपर की तरफ भी जाएगा ना, ऊपर ही जा रहा है। सेकंड ब्लॉक नीचे वाला ये सर, इसका भी तो प्लस होगा mg में, क्योंकि बीच में निकाला है ना, बीच का नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस पे किसका बोझ है? Who is the load on this surface? ऊपर की नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर से रिएक्शन होता है, वो नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, क्या ना क्या चाह रहा है। मैं समझ रहा हूँ, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो कह रहा है वो नहीं समझ पा रहा है। What he is trying to say. जो सेकंड वाला ब्लॉक है उसका ऊपर से नहीं लगेगा, उसी ने लगाया भाई ऊपर ये, और किसने लगाया? फर्स्ट ब्लॉक नहीं लगा सकता, फर्स्ट ब्लॉक नहीं लगाया, वो ऊपर फर्स्ट ब्लॉक लगा रहा नीचे की तरफ, फर्स्ट लगाएगा सेकंड पे, सेकंड लगा रहा फर्स्ट पे, वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। अभी तुम समझे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। टेक अगेन, अंडरस्टैंड। नॉर्मल रिएक्शन एक सरफेस अपने ऊपर वाले पे लगाता है। m2 के सरफेस पे ऊपर कौन रखा है? m1 लगा, m2 रहा है, बट किसके ऊपर लगा रहा है? m1 के ऊपर। दैट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है? केवल इसका वो जो है द लोड वेट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, उसको बैलेंस करता है। दोनों मिला के इस अर्थ को प्रेस कर रहे हैं, जो नीचे से नॉर्मल रिएक्शन है वो दोनों के वेट को बैलेंस कर। बट ये कंबाइंड ब्लॉक के लिए एफबीडी हो गया। हमने अगर इसको अलग से देखना है, दी एफबीडी ऑफ द लोअर ब्लॉक बी, उस बी पर इसका एक रिएक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, प्लस खुद का वेट लग रहा है, और नीचे से ग्राउंड से एन डैश। So ये n dash will be equal to n plus m2g, and since n is equal to m1g, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। What about second?
30 न्यूटन। ओके राधिका, सेकंड में कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन इन द सेकंड केस, हरसिमरत। सर 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, ओके वेरी गुड। सोनी, सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, बस आ चुके। ओके और कोई? यस हीप। ट्राई तो करो यार, पहले ही हाथ हिलाए दे रहे, सरेंडर पहले ही। नहीं गेस नहीं करना है, ट्राई करना है। आंख बंद करके तीर चलाओगे तो काम नहीं चलेगा। यस चलो देखते हैं। आंसर इज 20 न्यूटन। द नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन। बी का एफईडी देखते हैं पहले। एफईडी का मतलब इसको वहां से फ्री करके जितने फोर्सेस लग रहे हैं, ड्रॉ ऑल दी फोर्सेस ऑन इट। इस बी पे किसी ने लगाया, हमने लगाया सपोज बाहर से फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। Is this 10 root 2 applied on B? ये B पे लग रहा है, A पे लग रहा है? Will this appear in the FBD of B? No. B पे लगा ही नहीं वो। 10 root 2 is applied on A, not on B. इस फोर्स से B ने A को प्रेस किया, A ने B पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, B ने उल्टा उतना ही A के ऊपर, दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। 10 root 2 has nothing to do with this block B. वो A के सरफेस पर है, A के सेंटर पर है। जब आप B की एफईडी बनाएंगे तो B में केवल ये दो फोर्सेस आएंगे हॉरिजॉन्टल, बाकी वेट होगा और एक ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन होगा जो उसके वेट को बैलेंस करेगा। थोड़ा कंसेप्चुअली फील भी करना है, मतलब इट्स नॉट जस्ट यू राइट द आंसर एंड डन, फीलिंग चाहिए थोड़ी। गॉट इट? हमने फोर्स लगाया B पे, B ने A को प्रेस किया, A ने अपोजिट में नॉर्मल एक्शन प्रोवाइड कर दिया, बस वही फोर्स है। कौन सा? 45 डिग्री। वो तो A पे लग रहा है ना, जब A की एफईडी बनाएंगे तो उसको भी शो कर लेंगे। इफ यू ड्रॉ द एफईडी ऑफ A, A की एफईडी में एक 10 रूट 2 का फोर्स इधर है और A ने B पे लगाया था नॉर्मल रिएक्शन, B ने A पे लगा दिया, ये पीछे एक नॉर्मल रिएक्शन आई और एक इधर वॉल से नॉर्मल रिएक्शन आएगी बिकॉज इट हैज, दैट्स इट, दिस इज द एफईडी ऑफ A। बाकी वेट लग रहा होगा, वेट और परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, एफईडी ऑफ B। ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स वी आर इंटरेस्टेड, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल एक्शन लगाना है। इसके अलावा इनके अपने अपने अगर पूरा वीडियो बनाना है, दे विल हैव देयर ओन mg's एज वेल, बट उसकी वैल्यू मेंशन नहीं है। m2g एक नीचे से नॉर्मल एक्शन होगा जो ग्राउंड ने लगाया, इसका अपना नीचे वेट m1g और एक ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन होगा जो इसने लगाया m3। किस पे ऐड नहीं हो रहा है? A पे जो 10 न्यूटन लगा है उसका x कंपोनेंट B पे क्यों होगा? A पे लग रहा है तो A पे ऐड होगा। When it is applied on A, it will appear in the FBD of A. जब B पे लगा ही नहीं है तो B पे क्यों ऐड होगा भाई? फोर्स किस पे लगाया? So B पे क्यों लगाएंगे फिर हम? Force is applied on A. क्या? खत्म नहीं हो रहा है। हाँ तो उसने लगा दिया ना, उसी ने तो नॉर्मल एक्शन लगाया उसने। आपने ये रूट 2 लगाया, इसकी वजह से A B को प्रेस कर रहा है, and that pressing force is normal reaction। मतलब A का नॉर्मल एक्शन B की तरफ है, B का नॉर्मल एक्शन A की तरफ है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं जो इस फोर्स के और इस फोर्स की वजह से लग रहा है। इस तरह से फोर्स लगाया तो B A को प्रेस कर रहा है, इधर से खींचा तो A B को प्रेस कर रहा है, दोनों के प्रेसिंग की वजह से that normal reaction has been produced। अब B की एफईडी देखो कितना है, इधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स 20, इधर से N and 20 opposite, they balance each other, so this N is equal to 20। इसीलिए ये जो वर्कशीट्स हैं, they are
वेरी 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 मार्वलस, ब्यूटीफुल। फिजिक्स को थोड़ा डीपली अंदर तक फील करने। यस, नहीं, ये ए ने बी पे लगाया है वो ये है, जो बी ने ए पे लगाया वो ये है। बोथ विल बी इक्वल अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर आपने कसम खा रखी है हमें बी को नहीं छेड़ यूज करना है, then we can take this whole, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें ये n1 कितना हो गया, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हुआ ये n1, और तो इसका भी आ जाएगा ना एक 10, n1 + 10 = 20। अभी इधर अगर पूरे को एक साथ अज्यूम कर लोगे, n1 10 न्यूटन, नहीं समझ में, आराम से 2 बार 3 बार अपने आप बना के देखो, बट इसको अभी क्लियर कर लेना है। ये तो अभी डाउट रह गया कुछ, पूछो ईद। यस, बोलो, मतलब क्या समझ नहीं आया वो सोचने की कोशिश करो। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, फिर से गैप कर देते हैं सब कुछ। दिस इज द सिस्टम, राइट। अब बताओ, हमने बी पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन, बी प्रेसेस द सरफेस ऑफ ए प्रोवाइड्स नॉर्मल रिएक्शन टू बी, दैट इज दिस एन। ए ने बी पे लगाया, सो बी ए पे लगाएगा उतना ही। Because of this normal reaction, now A is pressing the wall, so wall has applied a normal reaction. कहाँ लगाया पहले? वो तो किसी ने बाहर से लगाया है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, किसी ने पकड़ के धक्का दिया है इसको। दिस इज नॉट बीन अप्लाइड बाय B, some person outside is pressing B, this is force exerted by some external agent। कहाँ पे? तो इसी तो 20 हो गई ना, इसको अलग से पकड़ लो। अभी रेस्ट में बाहर से हमने 20 लगाया, उधर से सरफेस ने भी उतना ही फोर्स लगाया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। It is given the question that the blocks are in equilibrium. This 20 Newton is applied by some external person, some external agent. इसका जो रिएक्शन लग रहा होगा 20, वो उसके ऊपर लग रहा होगा जिसने प्रेस किया। N1 की वैल्यू क्या है? अभी तो निकाला है। N क्यों है? Good question। अब एक ही एबिलिटी में आ जाओ, इधर से N1, ये 10√2 का कंपोनेंट करोगे, 10√2 cos 45 10, और इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन था n, और n की वैल्यू हमने देख ली, दैट इज 20 न्यूटन। n1 + 10 = 20। यस, सो n1 विल बी इक्वल टू 10। अभी क्लियर? ये डाउट है ना, ये जेन्युइन डाउट है, ये पूछते रहना। यस यस, बोलो बेटा। तो ये जो 10√2 का कंपोनेंट जो 45 डिग्री में कॉस वाला कंपोनेंट है सर, वो भी तो सेकंड बॉल पे फोर्स लगाएगा, मतलब प्रेस करने में हेल्प करेगा। उसी की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन आया है, राइट। बट 10√2 इज अप्लाइड ऑन ए, 10√2 का कंपोनेंट हम बी पे शो नहीं करेंगे, दैट विल नॉट अपीयर इन द एफबीडी ऑफ बी। अंडरस्टूड? 10√2 का एक कंपोनेंट भी बी पे फोर्स लगा रहा है, इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? 10√2 का एक कंपोनेंट भी बी पे फोर्स लगा रहा है, इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? यस और नो? सर होना तो चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? इसको अलग कर दो, ये 2 पर्सन थे, एक इधर से प्रेस कर रहा है, इधर खींच रहा है, इसका मन नहीं रहा, इसने हटा लिया अपना हाथ, अभी भी 10√2 ही रहेगा। ओके सर, यस सर। This force has nothing to do with B, this force has nothing to do with that 10 Newton, 20 Newton applied।
इसमें ए के ऊपर उस 20 न्यूटन का कोई लेना देना नहीं है. 20 डायरेक्टली इज नॉट अप्लाइड ऑन ए, सिमिलरली 10 रूट 2 इज नॉट डायरेक्टली अप्लाइड ऑन बी. उन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है उसकी वजह से ये फोर्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है. अब तुम पूछो, कुछ पूछो 10 सेकेंड में. ऊपर वाले का वेट सेकंड पे क्यों लगेगा भाई? तुम भी वही क्वेश्चन कर रहे हो जी, यहाँ पे चल रहा है. ऊपर वाले का वेट ऊपर वाले के सेंटर पे लगेगा, नीचे वाले पे नीचे वाले खुद का अपना इतना हो जाए. ऊपर वाले का वेट उसके सेंटर पे, खत्म. नीचे वाले पे ऊपर वाले का वेट क्यों लगेगा? वो तो उसका खुद का वेट लगेगा m2g. ऊपर वाले के ऊपर जो इसने फोर्स दिया है वो नॉर्मल रिएक्शन है, उस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन नीचे लगेगा. हाँ ऊपर वाले के वेट से रहा है। वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाले के वेट से आ रहा है, वो अलग बात है. ऊपर वाले के ऐसा कुछ कहा आपने? बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, भावनाएं व्यक्त करो. हाँ नहीं, ठीक नहीं है. जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. ये वही क्वेश्चन है जो अभी यहाँ पे पूछा जा रहा था. 10 रूट 2 भी तो बी पे लग रहा है, नहीं लग रहा है. 10 रूट 2 इज अप्लाइड ऑन ए, बट ए के सरफेस ने बी के सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया. सिमिलरली अर्थ ने m1 के ए के सेंटर को नीचे की तरफ खींचा m1g से, बी के सेंटर को नीचे की तरफ खींचा m2g से, बिकॉज वो ए बी के ऊपर रखा हुआ है. उस वेट से इसने सरफेस को प्रेस किया, सरफेस ने ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया n, उतना ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन नीचे लगेगा बी पे. These two are action pair और ये n m1g के इक्वल है, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से मिल रहा है इस m1g प्लस m2g. डी में हमने टैगल को कॉम्पोनेंट ऑब्वियसली लग ही नहीं रहा वो बी पे, उसको लेना देना ही नहीं है बी से. इस 10 रूट 2 को बी से फर्क ही नहीं पड़ता, किसी पर्सन ने पकड़ के खींचा है, उसकी मर्जी है. राइट? हाँ ओके. क्वेश्चन नंबर सर 4. पर फिर ये मतलब बॉल मूव करने नहीं लग जाएगी? अगर यहाँ पे तो बॉल मूव करने लग जाएगी, राइट. अगर बी नहीं है तो बॉल मूव करने लग जाएगी, उसका क्वेश्चन आ जाएगा. अब वो बॉल मूव क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जितना नॉर्मलाइजेशन लगा है उतना हमने बाहर से फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन. दैट्स व्हाई इट इज नॉट मूविंग. राइट? ओके सर. ये सर मैंने इसलिए दिखाया था कि अगर ये बॉल अलग है और ये बॉल अलग है, एक पर्सन ने यहाँ फोर्स लगाया 10 रूट 2, दूसरे ने दूसरे पे 20 लगाया, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है. वो अलग अलग होंगे तो भी उनके फोर्सेस उतने ही रहेंगे. वो फोर्स एक दूसरे को अफेक्ट कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द कांटेक्ट इन बिटवीन, और जो दोनों के बीच में कांटेक्ट है वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है. दैट ये भी हमें करना है. यस. द फोर्थ वन, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक. बिटवीन द ब्लॉक मतलब इस वाले सरफेस पे. यस. अच्छा अभी थर्ड भी रह गया, सॉरी. पहले थर्ड कर लेते हैं, फिर थर्ड कर लेते हैं, फिर फोर्थ पे. थर्ड वन एफ पता नहीं है, वेट पता है ऊपर वाले का, वेट की टर्म्स में निकालो. है पिछला वाला नहीं, थोड़ा थोड़ा फीलिंग बढ़ानी पड़ेगी. यस, थर्ड का आंसर 5√3 न्यूटन. कितना बेटा? सर 5√3 न्यूटन. 5√3. 10, ओनली 10. 10 तो इसका वेट ही हो गया m1g. हमें ये नॉर्मलेशन चाहिए, यहाँ से एक नॉर्मलेशन आ रही है n1 और एक इधर सरफेस से नॉर्मलेशन है, दैट इज n2. हमें कौन सा रे बतानी है? n1.
ये वही लग रही है भाई दोनों के बीच में, बिटवीन द ब्लॉक्स, तो वॉल से मिल रही है। N2 is provided by the wall, N1 is between the blocks. क्या मतलब ये जो शेडेड है ये वॉल है, these are the two blocks. हाँ किसी का आया ऑनलाइन? What is the value of normal reaction? ईद क्या हुआ? सोच रहे हो ना, फिर ठीक है, थोड़ा चलाओ, कोई नहीं, अभी तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा तो टाइम लेके आओ। स्कूल छोड़ दो एक आधे दिन, पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, बकवास होता है टाइम पास। ईशान रिवाइज हो गया पुराना फिजिक्स? एक किस चैप्टर के? नाम क्या है उसका? मोशन स्ट्रेट लाइन। ओके। किसी का नहीं आया? 20/√3। एफबीडी तो बनाई नहीं तुमने, बनाई कहीं? एफबीडी तो बनाई नहीं आपने, शायद बनाई है। अच्छा उधर ही बना दी, ठीक है। 20/√3 इज द आंसर। यस। कैसे? ये इसमें ये सारे फोर्सेस आ चुके हैं, 30, 90, 60, 60, 90, ये आ गया 30, so this will also be 30। N1 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट है N1 cos 30 और इस साइड में आ जाएगा N1 sin 30। Since this ball is stuck, ball is in equilibrium, ऊपर फोर्स लग रहा है N1 cos 30 and that N1 cos 30 is balancing M1G। That N1 cos 30 ऊपर की तरफ, that N1 cos 30 balances the weight, रिजॉल्व कर रहा है N1 को 30 एंगल, N1 cos 30 is equal to M1G, cos 30 is √3/2, M1 कितना है? 1, N1 is 20/√3। शान क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो तुम? बताओ समस्या। इस ब्लॉक पे थ्री फोर्सेस लगे हैं, दो कांटेक्ट है, एक इधर से नॉर्मल, एक वॉल से नॉर्मल और तीसरा इसका वेट, और इन तीनों की वजह से वो रुका हुआ है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट फॉलिंग। कुछ दूसरी तरह की फिजिक्स है, स्कूल में पढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ डन, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ डन, खत्म। यू राइट इन द एग्जाम, यू गेट फुल मार्क्स, यू आर चैंपियन इन फिजिक्स। स्कूल यूटी फुल आउट ऑफ फुल, 40 आउट ऑफ 40, 50 आउट ऑफ 50। ये कुछ दूसरी दुनिया आ गई, पता नहीं क्या कहा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, थोड़ी फीलिंग चाहिए, थोड़े एप्लीकेशन करने। दो सरफेसेस जहां जहां भी टच करेंगे दे विल अप्लाई फोर्स। वेरी गुड, 20/√3 आ रहा है। व्हाट अबाउट द फोर्थ? बेटा ये मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, किसी को ऐसा लग रहा हो, दिस इज द बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स। आई आल्सो वांट टू फिनिश सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल, बट ये ऐसी चीजें हैं जो समझ में बहुत देर में आती हैं। जब 10 बार एबीडी बनाओगे तो एक समझ में आएगा, अच्छा इधर का फोर्स इधर, उधर का इधर। तो दुर्घटना से देर भली, इसलिए अच्छा है कि हाँ। यस, नंबर 4 देन एबीडी दिखाना। And sin cos 45।
दो ब्लॉक है, एक आगे एक पीछे रॉड है, इनके बीच वाले पे ही बताना है यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें स्ट्रेस में क्यों? हाँ बोलो, मैं हेल्प करता हूँ, क्या करना है? कर रहे हो वंशिका? नाउ इट्स योर टर्न। क्या ये फोर्स जो इस सरफेस को प्रेस कर रहा है वो कितना है? हाँ? पर ऊपर 10√2 लिखा है, एंगल 45 लिखा है, उसके कंपोनेंट करोगे 10√2 cos 45, 10√2 into cos 45। cos 45 कितना होता है वंशिका? 930 कितना होता है? cos 45 कितना होता है? tan 45, tan 60, sin 60, एक सेकंड उसको बोलने दो। हाँ क्या एक बचपन में बहुत सिंपल सा तरीका बताया जाता है, कुछ नहीं पता है? वैसे तो ये अब तक याद ही हो जाना चाहिए। 0, 30, 45, 60, हाँ 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4। साइन के केस में 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 एंड देन टेक रूट। मतलब ये छोटे बच्चों को बताया जाता है, तो बड़े हो गए तो याद कर लेना चाहिए। हाँ तो cos 45 1/√2, 10√2 into 1/√2 is 10 न्यूटन। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसने इसको प्रेस किया, इट प्रोवाइड्स नॉर्मल रिएक्शन and that normal reaction is cancelling 10 न्यूटन n is equal to 10। इतना ही इसने इसको प्रेस किया है तो उतना ही सरफेस से भी आएगा, वॉल से भी। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल इज आल्सो 10। कुछ सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। If action force is gravitational force, then reaction force may be electromagnetic, may be electric, may be spring, must be gravitational force. Must be. Common sense. The magnitude of action force is greater than reaction force, equal to reaction force, lesser than reaction force. None of these. Equal to. If you push a wall by force 10 Newton, the force by wall on you is again 10 Newton. If you push a book by applying F is equal to 3I plus 4J, the force which is exerted by book is minus 3I minus 4J. जितना आपने लगाया उतने आपके ऊपर but opposite. Next is the nature of normal reaction is gravitational, electromagnetic, weak nuclear or strong nuclear. Electromagnetic normal reaction. Rishi, what are the nature of forces? How many forces are there in nature? चारों तो लिखे हुए इसी ऑप्शन में। ऐसे याद कर लो बस, आगे जानने की जरूरत नहीं है। What is the meaning of electromagnetic force? कौन से फोर्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलता है? Which type of forces are called electromagnetic? डेफिनेशन तो नहीं, कोई बात नहीं, भावना ही बताओ। ग्रेविटेशन फोर्स इज बिकॉज ऑफ मास। Two bodies they attract each other because of property of mass, that is gravitational force.
Two bodies exert force on each other because of property of charge. It's called electromagnetic. जो forces charge की वजह से लगते हैं वो electromagnetic nature के होते हैं because of the charge. There are two fundamental property that the matter possesses. One is mass, another is charge. Mass की property की वजह से जो force लगता है that is gravitational force. दूसरा electromagnetic force is because of charge. Normal reaction में charge कहाँ से आया? कहाँ से आया बताओ? गोविंद कहाँ से आया नॉर्मल रिएक्शन में चार्ज? गोविंद explain why normal reaction is electromagnetic force. गोविंद सर आवाज आ रही है? सर डिलेड रिस्पांस आता है तुम्हारा, कहीं क्या? और बिजी रहते हो? नहीं सर, सर आवाज बहुत आ रही है आजकल और सर बोर्ड से मेरे को क्लियर नहीं दिखता। बोर्ड से मुझको क्लियर नहीं दिखता मतलब? बोर्ड से क्लियर नहीं दिखता सर। मेरी आवाज क्लियर नहीं पड़ती है, उसका तो रिस्पांस दो। सर आवाज सर आपकी क्लियर आ रही है सर अभी। तुम बेटा आओ, तुम्हें यही बुलाया था ऑफलाइन, तुम फिर आना बंद कर दिया तुमने। सब कुछ क्लियर दिखेगा, ऑडियो वीडियो सब। टू सरफेसेस, क्या थी कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन की पंचिका? और डाउनवर्ड एक्ट करनी चाहिए ना? डाउनवर्ड एक करनी चाहिए बेटा, फिर से पढ़ो। टू सरफेसेस ग्रेविटेशनल इन फोर्स के कांटेक्ट। रिस्पांस में आती है ना सर वो? नहीं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पांस में नहीं आती। अगेन रिवाइज, ग्रेविटेशनल फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं। कोई भी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। आई एम अगेंस्ट दिस वॉल इज प्रोवाइडिंग नॉर्मल रिएक्शन, जबकि मेरे इसके बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। करेक्ट? ओके, सो डोंट हैव एनी मिसकंसेप्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई सरफेस, दो सरफेस कांटेक्ट में एक दूसरे को प्रेस कर रहे हो, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी है। सभी में मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे होंगे। नीचे वाले में भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल्स पे है। जितना पास आएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन, उतना ज्यादा रिपल्शन। दैट रिपल्सिव फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है अपोजिट टाइप वाले में। The positive charges of first surface, negative charges of second surface, they attract each other. Because of that attraction, they make a bond, and that bond is called friction. जो भी हम friction में पढ़ेंगे, that bond provides friction. दोनों तरह के charges हैं, because there are both the type of charges. नहीं समझे? मजा नहीं आया। अभी तो बता रहा हूँ, क्योंकि दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है। जो उसका पॉजिटिव वो नीचे वाले के नेगेटिव से अटैच हो जाता है, अट्रैक्ट करता है, देयर इज अ बॉन्ड। अगर आप आगे मूव करने की कोशिश करते हो तो ये बॉन्ड जो बन चुका है, दैट अपोजेस, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गया। समझ गए? बिल्कुल बनते हैं, वो सरफेस की रफ रफ कितना रफ है उस पर डिपेंड करता है। कितने वॉट वो स्मूथ सरफेस है, सपोज अट्रैक्शन इज नॉट दैट पावरफुल। बॉडी को लिफ्ट करते हैं करते हैं, तो हम फोर्स मतलब वेट लेते हैं ना, वेट कितना फोर्स लगा दोगे फिर अट्रैक्टिव बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक कर कॉन्टैक्ट जैसे लूज होगा खत्म हो जाएगा। इनिशियली लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग इक्वल टू वेट तो प्रैक्टिकली कभी भी नहीं उठेगा। समझ गए?
Normal reaction is electromagnetic in nature. Friction is also electromagnetic in nature. Tension is also electromagnetic in nature. Tension in string is also electromagnetic in nature. सारे forces electromagnetic होते हैं, सब charge की वजह से. Van der Waals force सुना है? Van der Waals force क्या होता है? हमारे तुम्हारे बीच में भी है अभी, गैस थोड़ी है. हाँ. What is the van der Waals force? Anyone? मतलब definition नहीं, थोड़ी भावना ही सही. केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस ही है. van der Waals फोर्स बताया मैंने, क्या होता है? ऑनलाइन मतलब जीरो. हाँ, ओके. Between any two molecules, the force of attraction is defined as van der Waals force. वो दो सॉलिड हो, दो लिक्विड हो, दो गैस हो, चलेगा. बट इफेक्टिवली van der Waals force is resultant of four forces. क्योंकि मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल होंगे, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, इसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज. एट ए टाइम देयर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग. दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, दोनों के नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं. पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करता है. सो ऐसे टोटल फोर फोर्सेस लग रहे होते हैं. इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड van der Waals फोर्स. van der Waals फोर्स किस पे डिपेंड करता है? van der Waals फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. फिर भी हाल है, मस्ती में ताजा ना करो यार. van der Waals फोर्स क्या होता है? प्रॉपर्टी. मैंने प्रॉपर्टी पूछी. van der Waals फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एनीवन? हरसिमरत, van der Waals फोर्स डिपेंड्स अपॉन van der Waals force depends upon fill in the blanks. Charge to mass ratio. The surface area. Another question to answer the same. Why methane is gas but butane is a liquid? इस क्वेश्चन के आंसर में उसका आंसर छिपा हुआ है. साइज डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया. मैंने कहा था मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया. कब बोला तुमने? आवाज मेरे तक नहीं आई, अभी आई है. मैंने बोला था सर. अपने अंदर ही बोला होगा, अभी बाहर नहीं आई आवाज. सर बोला था उसने. अच्छा बोला था, वेरी गुड. मुझे नहीं समझ पड़ा. इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया. गुड गोविंद, पढ़ाई कुछ तो कर रहे हो. मीथेन हैज ओनली वन मॉलिक्यूल, वन सी. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, उतना ज्यादा कांटेक्ट फोर्स होगा, उतने ही ज्यादा फोर्स है. दैट इज व्हाई फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? अभी हम फ्रिक्शन में पढ़ने ही वाले, इसलिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हियर. हम वहां नहीं करेंगे. अगर ये सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस फ्लैट है, इसका एरिया ज्यादा है पहले वाले का. टोटल सरफेस एरिया ना, ये सब मिला लोगे अगर, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया माइक्रोस्कोपिक, इसलिए यहाँ पे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है. एंड दैट प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन. दैट इज अनदर प्रूफ दैट फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, व्हिच इज नथिंग बट van der Waals फोर्स. ये इंक बोर्ड पे क्यों चिपकी हुई है? हाँ मतलब दिस स्टिकिंग हियर हमेशा हर जगह थोड़ी होती है. व्हाई इट इज स्टिकिंग देयर? वाटर पे लिख के दिखाओ. अंडरस्टूड ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये कौन सा फोर्स है दोनों के बीच में? हर चीज चार्ज से ही होती है. फ्रिक्शन तो ठीक है, चार्ज राइट. सो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था. व्हाई नेचर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक.
वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि चार्जेस ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। हम चल पाते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, खड़े हो पाते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, सब चार्ज का ही खेल है। जनरली इट इज सेड नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। नंबर 8, generally it is said normal reaction always act perpendicular to the surface of contact. The statement is always correct, the statement is sometimes correct, the statement is incorrect, we cannot comment. Always perpendicular, right. In a general debate on topic normal reaction and mg never form action and reaction pair. हमने भी कुछ डिबेट की थी इस पे, नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी। A number of students of JEE Mentors Institute, तो उसको 100+ Academy Institute बना लो, कोई बात नहीं। A number of students of 100+ Academy took part. Mr. Govind said action and reaction forces should be of same nature, hence normal reaction is electromagnetic but mg is gravitational. Action and reaction force should be of same nature, ये सही है। Yes, sir. अगर एक्शन ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन होना चाहिए, अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना चाहिए। Hence normal reaction is electromagnetic but mg is gravitational, so that is one proof they cannot be action reaction pair. हमने बहुत सारे तरीकों से प्रूफ किया था that n and mg, जो कुछ सस्ती किताबों में लिखा हुआ है, they are action reaction pair including SL Arora, SL Arora में भी ये चीज गलत लिखी हुई है। Yes, Aditi Mehta said, जो भी है, action and reaction forces act on two different bodies, hence normal action and mg both are acting on the same block. ये भी सही है। एक्शन रिएक्शन दो अलग बॉडीज पे लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक में लग रहा है, इसलिए दे कैन नॉट बी। आचार्य सेड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, सो नॉर्मल एक्शन एंड mg शुड बी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये गलत है। n and mg not necessarily balance out each other. एक्शन रिएक्शन हमेशा बैलेंस करते हैं, बट नॉर्मल एक्शन एंड mg not necessarily balance out each other. हाँ, तो अगर दोनों को एक सिस्टम में ले लोगे तो बैलेंस हो जाएंगे ना। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, a block of mass 1 kg is moving on a horizontal xy plane in the influence of force। xy plane पे कोई ब्लॉक रखा है और उस पे फोर्स लगाया है 3I। कोई थोड़ा फुर्सत में करने वाली एक्सरसाइजें हैं तो इसलिए आराम से, कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा कम भी कर पाते हैं इट्स ओके, बट इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, it's the quality of questions and understanding. ये xy plane है, this is x, this is y और ऊपर z। Block is kept on the xy plane और इस पे फोर्स लग रहा है 3I, यानी x डायरेक्शन में 3 प्लस 4j y डायरेक्शन में 4 एंड माइनस 5k यानी नीचे की तरफ 5। These are the three forces applied on this block। ये क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना था, मैंने बना दिया आपके लिए। इसका मास है 1 kg, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द प्लेन। 1 kg is the block, find the normal reaction from the plane on which it is kept। ये फोर्सेस लग रहे हैं। 3I plus 4j minus 5k are the three forces acting here, calculate the normal reaction from the surface। xy जिसमें वो प्लेन रखा हुआ है, z उसके परपेंडिकुलर है। हाँ बोलो। सर 15 न्यूटन। 15 न्यूटन, इसका वेट हो गया 10, 5 हमने लगा दिया, दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। इसका ऊपर से लग रहा है ना, वो तो ऐसे लग रहा है, एक इधर एक इधर, एक x एक y। नॉर्मल रिएक्शन तो z पे है ना। 5 न्यूटन 10 न्यूटन इसका वेट, mg दोनों को बैलेंस करा नीचे से नॉर्मल रिएक्शन। 3 और 4 की वजह से वो सरफेस पे मूव करने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, a smooth rod of mass 10 kg is an equilibrium of balls which are fixed। दो बॉल्स हैं 60 डिग्री के एंगल पर, इसके बीच में एक रॉड रखी हुई है इन इक्विलिब्रियम सिमेट्रिकली। गोविंद बेटा फिजिक्स की पढ़ाई भी स्टार्ट करो, फिजिक्स से क्या दुश्मनी है?
दिमाग खर्च होता है थोड़ा, बस इतना है। सर कर रहा हूँ सर, अभी मैं एग्जाम सर अभी खत्म हुए सर, अभी प्रैक्टिकल शुरू हुए। एग्जाम चलते रहते हैं, बड़े हो गए हो, रोज ही एग्जाम है कहीं ना कहीं, कभी यहाँ कभी स्कूल कभी कुछ कभी कुछ। 10 kg is the mass of this rod. Find the normal reaction exerted by wall. किसी भी एक wall का, ये ए भी एक wall है, एक AC है, किसी भी एक का normal reaction। Question number 11. By symmetry it will be same. ओके, रिवाइज करना है पुराना, अभी कर रहे हो? कल आओ बेटा, तो स्कूल नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड सैटरडे होता है। क्या चाहते हैं आप कैसे? Yes. What is the normal reaction from the wall in this question number 11? तुम यार डायग्राम नहीं बना रहे, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा, खाली एबीसीडी लिख रहा, चक्कर क्या? हाँ, सर 100 न्यूटन। ऑफलाइन में आके इतना कर रहे हो, तो फिर घर पे तो कुछ भी नहीं करते होगे, सही बोल रहे थे पापा। आंसर इज 100 न्यूटन। सर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इधर से आया आंसर। यस, 100 न्यूटन इज करेक्ट। यस, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ रॉड। एक इधर से फोर्स एन, बाई सिमेट्री इधर से भी सेम ही होना चाहिए एन, ये 60, ये दोनों 60 60 हो जाएंगे, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, दिया नहीं हुआ, सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है, it is shown in the diagram, it is in equilibrium, तो इक्वली होंगे फोर्स, नहीं तो फोर्स एक तरफ का ज्यादा हो जाएगा, तोड़ के वॉल पर निकल जाएगा बाहर, which is not happening। 60, so 30, वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड cos 30 कैंसिल, एंड sin 30 एंड sin 30 दोनों की साइड का जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो दोनों मिलके इसके वेट को बैलेंस करते हैं। n sin 30 plus n sin 30 balances the weight. 2n sin 30 is equal to mg, m is 10, so 2n sin 30 is 100. n sin 30 from left side, न्यूटन नहीं हुआ क्योंकि उसने सिर्फ एक वॉल का पूछा है। बेटा वो n ही तो है, 2n sin 30 n ही तो निकाला हमने, 2n थोड़ी निकाला। सिमरत, हमने n ही तो कैलकुलेट किया ना, n is 100 यस सर। and is applied by each wall. ओके, ऐसा ही कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन आगे वाला भी है। A smooth rod of mass 1 kg is in equilibrium inside a hollow sphere. Those who want to do more practice after SL, HC Verma is the book. मतलब ऐसे तो ये DPP ही कर लो अच्छे से समझ के, it's more than sufficient. एक एक टॉपिक पे हम काफी सारा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पे, नॉर्मल रिएक्शन पे, इक्वेशन पे। करना चाहिए नहीं, बट कोई बात नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? इतनी डिटेल्ड स्टडी जितनी हम कर रहे हैं, मतलब अभी टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए नहीं करनी चाहिए, बट इट्स ओके बिकॉज द अदर क्लास इज टेकिंग केयर ऑफ सिलेबस, इसलिए आई एम नॉट वरीड अबाउट द पेस। तो स्कूल के लिए आपको साथ में जो पैरेलल क्लास चलती है उसको अटेंड करते रहें, ठीक है? सर अभी रिवीजन कराएंगे चैप्टर नंबर 1 से, सर की क्लास अटेंड करनी है, मेरे वीडियोस देखना, ऑनलाइन लिंक आ जाएगा आपके पास ग्रुप में, आप ठीक है? मैम को बोल देना ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे।
रोटेशन आ रहा है एग्जाम में? नहीं आ रहा ना? सर ने शुरू कर दिया, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद स्टार्ट हो जाएगी रिवीजन, मतलब मैक्सिमम 2 मोर क्लासेस। Yes, next question is, this is a hollow sphere. Hollow sphere के अंदर एक रॉड रखी हुई है। Again, it will be kind of symmetrical only. Angle ACB is 120 और इसका mass है 1 kg. This angle is 120 and the mass of this rod is 1 kg. सेंटर पे है ना? Obviously center से, yes. Calculate normal radiation provided by the surface of sphere. काफी हो गया नॉर्मल रेडिएशन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डीपीपी पे। बाकी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो आप करेंगे। डीपीपी नंबर 3। नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। पेन चलाओ, दिमाग चलाओ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ड्रॉ नॉर्मल रेडिएशन। किधर लगता है नॉर्मल रेडिएशन? ये इधर क्यों जा रहा है? अगर हम किसी स्फीयर पे, किसी सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहां से पास होता है? सेंटर से ना। नॉर्मल रेडिएशन का एंगल कितना है? ये एंगल निकालो वर्टिकल से, कोई भी निकालो, अंदर का निकालो, बाहर का निकालो, कोई भी निकालो। व्हाट इज दैट एंगल दैट नॉर्मल रिएक्शन मेक्स? व्हाट आर द एंगल्स? एंगल के बाद नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करो। हाँ, वो आप ही बनना पड़ेगा बेटे। आई विल नॉट डू फॉर एवरी क्वेश्चन। एंगल देखो कितना है, ये एंगल कितना बनाया एन ने? यस, परपेंडिकुलर। स्फीयर है, सर्कल है, परपेंडिकुलर कहां से पास होता है? किसी सर्कल पे परपेंडिकुलर डालो, कहां से पास होता है? किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो कहां से पास होगा? सेंटर से। सेंटर से। हाँ, इधर, उसका इधर। गुड। अब एन के कंपोनेंट करो, वेक्टर को रिजॉल्व। हॉरिजॉन्टल वाले, इधर वाले। हाँ हाँ हाँ, बनाओ फटाफट। यस, व्हाट इज द आंसर? 10। नॉर्मल रेडिएशन L1 सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों तरफ से सेम आ जाएगा, अगेन बाय सिमेट्री। 120 सो 60 दोनों का समेशन हाफ ऑफ 30 n sin 30 n sin 30 vertically upward 2 n sin 30 is equal to mg, and cos 30 and cos 30 cancels out. 2 n sin 30 is equal to mg. sin 30 इधर नीचे। फोर्स इधर लगेगा भाई, इधर लग रहा है। रॉड पे फोर्स ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा। एंगल कहीं से भी दो। डीपीपी नंबर 3, टेंशन द स्ट्रिंग। डीपीपी नंबर 3 वंशिका खुद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू वांट टू लर्न फिजिक्स। टेंशन स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने शायद। ये डीपीपी नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट क्लास। ओके, फाइंड द टेंशन इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग। बाकी जो बच्चे कुछ खतरनाक वाले क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में, इजी इजी वाले हम यहाँ कर रहे हैं। मतलब खतरनाक मतलब सिंगल चॉइस वाले 1 on 1 जो है
वो आपको होमवर्क में करना है, जो मोर देन वन और वैसे टेढ़े मेढ़े वो अभी के लिए अपनी अपनी मतलब कंफर्टेबल जितना है आप उतना ही करिएगा. This is a block of mass 10 kg suspended from a string. What is the tension in the string? Second, two blocks M1 and M2 are connected by string. A force F is applied on it. Find the tension. Find the tension in the string. Surface is perfectly smooth. Third, two blocks A and B are connected by light string passing over a pulley. Either 10 kg, on the other side 5 kg. A block of mass 1 kg is connected with a light string passing over a fixed smooth pulley. Number 4 is there is a pulley. एक साइड में ब्लॉक है, दूसरे साइड की स्ट्रिंग को पकड़ के पुल कर रहा है. There is no block on the other side. 1 kg block and on the other side 20 Newton force is applied. पहले ये चारों करते हैं, then we will move further. ये सारे किए थे ना हमने, सारे किए थे. Yes, I think so. कर डालो फिर दोबारा फटाफट, बताओ आंसर क्या. ठीक है, तो जैसे नहीं किए थे वैसे वाले एक आधे कर लेते हैं. 1 kg and 2 kg. This is hanging. This is from question number. बाकी जो 20 के बच्चे हैं वो होमवर्क में. Question number third, second part. Find the tension in each string. क्लास में क्या है यार ये? नोट्स बनाते नहीं हो, पहली बात तो रिवाइज कैसे करोगे, है ना? ये पंगा है, रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना पड़ता है. यस, कैसे किया था सेकंड गाना ऋषित? अच्छा जब इसको पुल करेंगे स्ट्रिंग वापस पीछे की तरफ, P and T they both will move together with the same acceleration. Total force is mass into acceleration for the system. We get acceleration of each block as F upon M1 plus M2. Acceleration मिल गया. अब M1 के लिए इक्वेशन लिख लेंगे. इस पे क्यों लिखिए, फोर्स लग रहा है T is equal to M1 into A. A is F divided by M1 plus M2. Consider both the block in one system. They will move together with same acceleration. System के लिए इक्वेशन लिखोगे, force is mass into acceleration. Mass is M1 plus M2. From there we get acceleration और acceleration को वापस टेंशन की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सब में जितनी रस्सियां सब में निकाल लें. थर्ड का आंसर क्या है? वैसे तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव किया था ऐसे अटवुड मशीन के लिए. 6.6. 66.6 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. The standard formula for tension when two blocks are connected together is 2m1 m2 upon m1 plus m2 g. Acceleration के लिए था m2 minus m1 upon m2 plus m1 g. इससे 6.6 बोला किसी ने, राधिका ने अभी 33.3. एक्सेलेरेशन नहीं टेंशन बताना है.
2 m1 m2 g divided by m1 plus m2 200 by 3 66.6. क्या कर रहे हो? क्या किया? वेट लेना एक्सलेशन कितना हुआ? एक्सलेशन था m2g minus m1g. So m2g minus m1g यानी 10g 100 minus 5g यानी 50 divided by m1 plus m2. So 50 by 15 that's 10 by 3. फोर्थ वाले में एक्सलेशन और टेंशन में एक्सलेशन कितना है? वन साइड फोर्स इज पुलिंग बाय 20 न्यूटन. उधर से फोर्स पुल कर रहा है 20 न्यूटन, दूसरी तरफ से इसका वेट पुल कर रहा है बाय 10 न्यूटन. So what is the net pulling force? 20 minus 10. शान हाँ बिजी हो गए. तो पता भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन देख रहे हो कि क्या कर. डिवाइड बाय टोटल मास. मास कितना है इसमें? सिस्टम का टोटल मास. नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. मास को देखिए 1 kg only 1. 20 न्यूटन minus 10 न्यूटन divided by total mass plus 20. Third में there will be two different strings, there will be two different tension, T1 T1 T2 T2. इधर नीचे M2G, इधर ऊपर M1G भी लग रहा होगा. T2 is equal to M2G, T1 is equal to T2 plus M1G because of the force balance. वंशिका दिमाग को फ्रंट सीट पे लाओ. हाँ, फिजिक्स पढ़ने के लिए यू हैव टू ड्राइव. कॉपी करके और लर्न करके फिजिक्स कभी भी नहीं आएगी. नेवर एवर. You have taken science as a subject. Use it to develop your brain. नीट के एग्जाम में फिजिक्स क्यों है? Why there is a physics requirement in the NEET exam? मशीन के लिए नीचे बहुत सारे उनके हेल्पर होते हैं, टेक्नीशियन. They don't have to. हाँ? बिल्कुल, बहुत सारे मेटल से काम करना पड़ता है, बहुत सारे केमिकल से काम करना पड़ता है भाई. क्या पहले थोड़ी पता कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलने वाला है इनको, तो रैंक डिसाइड करेगी ना. हाँ. यस, व्हाई फिजिक्स इज इन द नीट एग्जाम? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्या करने के लिए? हाँ बिल्कुल, ताकि ह्यूमैनिटीज वाले भी डॉक्टर ना बन जाए. ह्यूमैनिटीज वाले भी डॉक्टर ना बन जाए कहीं रट्टा मार के. इसके पास दिमाग है उसको अलग करना है. टू चेक दी IQ लेवल कि दिमाग वाले लोग ही डॉक्टर बने. अंडर प्रेशर दिमाग चला तो पाए. पढ़ के भूल गया, अच्छा ये यहाँ पे ये काटना था, ये वाली काटनी थी, भूल गया, कुछ नहीं कई बार काट दी. So only those who can apply brain should become doctor. That's the only logic. वरना तो सिविल सर्विसेज है, SSC है, रट्टा मारो, हिस्ट्री पढ़ो 6 से लेके 12 तक की. बेटा इस सब रेस्ट में नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है रेस्ट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे. सरफेस स्मूथ है, राइट. बस एक बच गया, लास्ट वाला कर लेते हैं. नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. बहुत सारी कंट्री में नहीं है फिजिक्स की रिक्वायरमेंट. वहां के डॉक्टर का भगवानी मालिक है, उन डॉक्टरों को यहाँ पे वो नहीं दी जाती. They are not allowed to practice in India. Similarly, okay, M2G नीचे पुल कर रहा है और इधर कोई खींच नहीं रहा है. So net force. सर. Yes बेटा. सर T1 12 न्यूटन और T2 4 न्यूटन है क्या? सेकेंड में 20 by 5 that is Yes, sir. 4. So अगर हम इसको ले लेते हैं, let's say T2 and here if we say T1, T1 is equal to 1 into A, that's 4 Newton. ये नीचे जा रहा है, so M2G minus T2
is equal to m2 into 8, 20 minus t2 is equal to 8. T2 will be 12 Newton. So 4 Newton and 12 Newton. मेरे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने टॉप रैंक यानी सिंगल डिजिट रैंक आई है नीट में, या वो वही हैं जिन्होंने जेई की भी फिजिक्स सॉल्व की है और जेई की भी केमिस्ट्री सॉल्व की है. समझ गए? ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 17. इससे क्या, व्हाट इज द कंक्लूजन? यही करना. You should not hesitate to apply your brain while solving physics. 10 तक आपने फिजिक्स का पी भी नहीं समझा. फिजिक्स तो दूर की बात है. That was some history. लेट के पढ़ो ऐसे आराम से, बेड पे लेट के. What is inertia? खत्म, चैप्टर खत्म हुई. What is force? Push or pull? That's it. इसका ये कुछ भी नहीं है. So वो एक आपने एंजॉय किया है, अभी उसको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ेगा. And the earlier you understand this, उतनी जल्दी आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी. ठीक है? तो कल आप आ रहे हैं रिवीजन के लिए? अब बताओ, मैं क्या पता तुम कब फ्री हो? Whatever time you can come after 12. Okay, thank you.